মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, অজয় পাত্ৰৰ এডুকেশ্যন চেনেললৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক ক্লাছ 9ৰ হিন্দী কিতাপৰ 10 নম্বৰ চেপ্টাৰ দোহা দশক এই পাঠটোৰ সম্পূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিম। যদি তোমালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, ঠিক আছে? কাৰণ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে যেতিয়াই মই ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবা, ঠিক আছে? চ' আহা তেনে দেৰি নকৰি কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ কৰোঁ। এক নম্বৰ, সহি বিকল্প का चयन करो, শুদ্ধ এনচাৰটো বাছি লিখা। ক प्रश्न, कविवर बिहारी लाल किस काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? কবিবৰ বিহাৰী লালক কোনটো কালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কবি বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব रीतिकालके। ख प्रश्न, कविवर बिहारी लाल की काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होने वाले मुगल सम्राट थे? মানে কবি বিহাৰী লালৰ কাব্য প্ৰতিভাত মানে প্ৰসন্ন হোৱা, ঠিক আছে, মোগল সম্ৰাটজনৰ নাম কি আছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব শাহজাহান, ঠিক আছে, শাহজাহান। গ নম্বৰ প্ৰশ্ন, কবি বিহাৰী লাল का দেহাৱসান কব हुआ? ঠিক আছে, কবি বিহাৰী লালৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 1663 চনত। ঘ প্ৰশ্ন, শ্ৰীকৃষ্ণ के सिर पर क्या शोभित है? ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মানে মাথাত কোনটো শোভিত হয়, শোভা দেখায়, ঠিক আছে? এইটো মুকুট হ'ব, উত্তৰ মুকুট। उंग प्रश्न, कवि बिहारी लाल ने किन्हें सदा साथ रहने वाली संपत्ति माना है? কবিবৰ বিহাৰী লালে কাক একদম মানে গোটেই জীৱনৰ সম্পত্তি বুলি ভাবি লৈছিলে, ঠিক আছে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব যদুৱতী কৃষ্ণকো, মানে ভগৱানক নিজৰ সম্পত্তি বুলি মানি লৈছিলে। नंबर 2, 2 নম্বৰ, নিম্নলিখিত কথন শুদ্ধ है या अशुদ্ধ है बताओ, ঠিক আছে? নিম্নলিখিত কথাবোৰ তলত দিয়া কথাবোৰ শুদ্ধ নে অশুদ্ধ বাছি লিখা, ঠিক আছে? ক प्रश्न, हिंदी के समस्त कवियों में भी बिहारी लाल का अग्रिम पंक्ति अधिकारी है, ঠিক আছে? এইটো হ'ব উত্তৰ শুদ্ধ, ঠিক আছে? ख प्रश्न, कविवर बिहारी लाल को संस्कृत और प्राकृत के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ के अध्ययन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, ঠিক আছে? কবিবৰ বিহাৰী লালক সংস্কৃত আৰু প্ৰাকৃতি প্ৰসিদ্ধ কাব্যগ্ৰন্থৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ মানে অৱসৰ প্ৰাপ্ত হোৱা নাছিলে বুলি কৈছে। এইটো প্ৰাপ্ত হৈছিলে, এইটো কথাটো অশুদ্ধ হ'ব, ঠিক আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো অশুদ্ধ। গ নম্বৰ, 1645 इंग के आसपास कवि बिहारी लाल वृत्ति लेने जयपुर पहुंचे थे, ঠিক আছে? 1645 চনত কবিবৰ বিহাৰী লালে বৃত্তি ল'বলৈ জয়পুৰ গৈছিলে। এইটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ? উত্তৰ শুদ্ধ, ঠিক আছে, শুদ্ধ হে। ঘ प्रश्न, कवि बिहारी के अनुसार ऊंचा व्यक्ति भी बड़ा बन सकता है? কবিবৰ বিহাৰী লালৰ মতে চৰিত্ৰহীন ব্যক্তিও মহান হ'ব পাৰে। এইটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অশুদ্ধ, ঠিক আছে? চৰিত্ৰহীন ব্যক্তি কেতিয়াও মহান হ'ব নোৱাৰে। उंग नंबर प्रश्न, कवि बिहारी लाल का कहना है कि दुर्दशाग्रस्त होने पर भी धन का संचय करते रहना कोई नीति नहीं है। কবিবৰ বিহাৰী লালৰ মতে বেমাৰৰ সময়তো মানে সম্পত্তিৰ সঞ্চয় কৰাটো কোনো নীতি নহয়, ঠিক আছে? এইটো এনচাৰটো হ'ব শুদ্ধ।
আমি যদি বেমাৰৰ সময়তো যদি ধন সঞ্চয় কৰি থাকোঁ তেনেহ'লে বেমাৰীটো দেখোন মৰিয়ে থাকিব, ঠিক আছে। এইটো অশুদ্ধ, মানে শুদ্ধ বাক্য হয়, এইটো শুদ্ধ, ঠিকে কৈছে এইটো কবিয়ে। তিনি নম্বৰ, পূৰ্ণ বাক্য में उत्तर दो, মানে সম্পূৰ্ণ বাক্যত উত্তৰ দিয়া। ক प्रश्न, कवि बिहारीलाल ने मुख्य रूप से कैसे दोहों की रचना की है? कवि बिहारीलाले মুখ্য ৰূপত কেনেকা দোহাৰ ৰচনা কৰিছে, ঠিক আছে। উত্তৰ হ'ব, कवि बिहारीलाल ने मुख्य रूप से प्रेम सिंगार और गौण रूप से भक्ति एवं नीति के दोहों की रचना की है, ঠিক আছে। তোমালোকে ভালদৰে লিখিবা দেই প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ, আকাৰ ইকাৰ ভুল নকৰিবা। খ प्रश्न, कविवर बिहारीलाल किन के आग्रह पर जयपुर में ही रुके? कविवर बिहारीलाले কাৰ আগ্ৰহত জয়পুৰলৈ, মানে জয়পুৰত থাকিবলগীয়া হৈছিলে, ঠিক আছে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, कविवर बिहारीलाल महाराज जय सिंह और चौहानी रानी के आग्रह पर जयपुर में ही रुके। মহাৰাজে, মানে কবিবৰ বিহাৰীলালে জয়পুৰ যেতিয়া গৈছিলে তেতিয়া জয়পুৰৰ মহাৰাজ আৰু মহাৰাণীয়ে তেখেতক আজি থাকি যোৱা বুলি কৈছিলে। সেইকাৰণে সি মহাৰাজ আৰু মহাৰাণীৰ আগ্ৰহত, মানে সিহঁতৰ কথাতে তেওঁ জয়পুৰত থাকিছিলে, ঠিক আছে। গ प्रश्न, कवि बिहारी की ख्याति का एकमात्र आधार ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है? মানে কবিবৰ বিহাৰীলালৰ একমাত্ৰ আধাৰ গ্ৰন্থখনৰ মানে নামটো কোনটো নামত প্ৰসিদ্ধ আছে, ঠিক আছে, আধাৰ গ্ৰন্থখন। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, कवि बिहारी की ख्याति का एकमात्र आधार ग्रंथ का नाम सत्सई नाम से प्रसिद्ध है, ঠিক আছে, সৎসই নামত প্ৰসিদ্ধ আছে। घ नंबर प्रश्न, किसमें किससे 100 गुनी अधिक मादकता होती है? কিহত, মানে কিহত কাৰকৈ অধিক গুণ, মানে ক'ত অধিক মাদকতা মানে নিচা থাকে, ঠিক আছে, কোনটো বস্তুত অধিক নিচা থাকে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, सोना में धतूरा से 100 गुण अधिक मादकता होती है, মানে সোণত ধতুৰা গুটিতকৈ অধিক নিচা থাকে, ঠিক আছে। মানে কি হয়, ধতুৰাটো নিচাহে লাগে নহয় জানো। ধতুৰা গুটিটো খালে আমাক নিচা লাগে, কিন্তু সোণ বোলা বস্তুটো মানুহে যেতিয়া পাই যায়, কোনোবাই যদি 1 কেজি পাই যায়, তো মানুহৰ কি হয়, অহংকাৰ হয়, আৰু এটা মানে বহুত অহংকাৰ হৈ যায়, মানে মই ইমান ধনী মানুহ, হেন তেন, এনেকুৱা অহংকাৰ হৈ যায়। এইটো কাৰণে কৈছে কবিয়ে যে সোণত বহুত মানে নিচা থাকে, বহুত মাদকতা থাকে, ঠিক আছে, এইটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। 19 नंबर प्रश्न, कवि ने गोपीनाथ कृष्ण से क्या क्या न गिनने की प्रार्थना की है? কবিয়ে গোপীনাথ শ্ৰীকৃষ্ণক কি হিচাপ কৰিবলৈ কোৱা নাছিলে, ঠিক আছে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, कवि ने गोपीनाथ कृष्ण से गुण और अवगुण न गिनने की प्रार्थना की है। কবিবৰ বিহাৰীলালে শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱানক মানুহৰ গুণ আৰু অৱগুণবোৰ মানে বিহেৰি কৰিবলৈ কোৱা নাছিলে, ঠিক আছে, হিচাপ কৰিবলৈ কোৱা নাছিলে। মানুহৰ গুণ অৱগুণ বহুত থাকে নহয় জানো। এতিয়া 4 নম্বৰ, 4 नंबर, अति संक्षेप में उत्तर दो लगभग 25 शब्दों में। क प्रश्न, किस परिस्थिति में कविवर बिहारी काव्य रचना के लिए जयपुर में ही रुक गए? কি পৰিস্থিতিত কবিবৰ বিহাৰীলালে জয়পুৰত কাব্য ৰচনা কৰিবলৈ ৰখি থাকিলে, ঠিক আছে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, कविवर बिहारीलाल के काव्य प्रतिभा से मुगल सम्राट शाहजहां बड़े ही प्रसन्न हुए
और उनके कृपापात्र बने। और कविवर बिहारीलाल का संपर्क मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ अन्य राज्यों में भी हुआ। कई राज्यों से उनको वृत्ति मिलने लगी। एक दिन वे वृत्ति लेने जयपुर पहुंचे थे। वहां के महाराज जयसिंह और चौहानी रानी के आग्रह पर बिहारीलाल जयपुर में ही रुक गए और प्रत्येक दोहे के लिए एक आसरफी की शर्त पर काव्य रचना करने लगे। ঠিক আছে। কবিবৰ বিহাৰীলালে তেওঁৰ কাব্য প্ৰতিভা মোগল সম্ৰাট শ্বাহজাহানৰ ওচৰত দেখালে। মোগল সম্ৰাট শ্বাহজাহাই বহুত প্ৰসন্ন হৈছিলে। আৰু প্ৰসন্ন হোৱাৰ পাছত তেওঁ এদিন মোগল সম্ৰাট যেতিয়া প্ৰসন্ন হ'ল তো মোগল সাম্ৰাজ্যৰ যিমান অধীনস্থ ৰাজ্য আছিলে চব ৰাজ্যত তেওঁৰ নাম হৈ গ'ল। ঠিক আছে। গোটেই জানিলে যে এনেকুৱা এটা কবি আছে বুলি। তাৰ পাছত এদিন তেওঁ বৃত্তি ল'বলৈ জয়পুৰ গৈছিলে। তাৰ পাছত জয়পুৰ যেতিয়া গৈছিলে জয়পুৰতো তেওঁক জয়পুৰৰ মহাৰাজ জয়সিং আৰু চৌহানী ৰাণীয়ে আগ্ৰহ কৰি তেওঁক জয়পুৰতে এদিন থাকিবলৈ ক'লে, থাকা ইয়াত বুলি ক'লে। ঠিক আছে। তো তেওঁ কাব্য ৰচনা কৰিবলৈ তাতেই ৰৈ থাকিলে। ঠিক আছে। মই যিমান পাৰিছোঁ তোমালোকক অসমীয়াত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তোমালোকে ভালদৰে বুজিবা। ঠিক আছে। বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ ভালদৰে লিখিবা, আকাৰ ইকাৰ ভুল নকৰিবা। ঠিক আছে। খ প্ৰশ্ন, यही बानक मो मन बसो सदा बिहारी लाल का भाव क्या है? এই বাক্যকেইটাৰ ভাৱ কি? কি ভাৱ লিখিবলৈ কৈছে। ঠিক আছে। उत्तर, इस वाक्य का भाव यह है कि कविवर बिहारीलाल को अपने सिर पर मयूर मुकुट सदा रहने पर मन बड़ा खुश रहते हैं और हमेशा यह दृश्य देखने मिले तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए कविवर बिहारीलाल यदुपति कृष्ण को उनके रूप में सदा रहने को प्रार्थना की है। ठीक है। ग प्रश्न, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्जवल होए का आशय स्पष्ट करो। यार उत्तर हो, इस वाक्य का आशय यह है कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति भाव से नहीं देखते उनका भक्ति समझ पाना कठिन है और जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में अपने को समर्पित करते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। अर्थात भक्ति में गहरी भाव से प्रेम निवेदन करने से अपना जीवन सार्थक होता है। ठीक আছে। ভগৱানৰ ভক্তি কৰিলে ভালদৰে কৰিব লাগে। ঠিক আছে। ঘ প্ৰশ্ন, आटे पर प्राणन हरे काटे लो लगी पाए के जरिए कवि क्या कहना चाहते हैं? এই বাক্যশাৰীত কবিবৰে কি ক'ব বিচাৰিছে? ইয়াৰ उत्तर হ'ব, इस पंक्ति में कविवर बिहारीलाल यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जितना विपत्ति आते हैं उतना ही वे व्यक्ति कृष्ण भक्ति में प्रेम भावना को जानते हैं। মানুহৰ জীৱনত যেতিয়াই বিপত্তি আহে, সংকট আহে, তেতিয়াই মানুহে ভগৱানক স্মৰণ কৰে। ঠিক আছে। আৰু তেতিয়া ভগৱানৰ ভক্তিটো গহীন ভাল হৈ পৰে। ঠিক আছে। अर्थात व्यक्ति को भक्ति मार्ग में कांटे लग जाने पर व्यक्ति का भाव प्रेम भावना बढ़ जाता है और अपना जीवन धन्य हो जाता है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम का तात्पर्य बताओ। এই বাক্যকেইটাৰ অৰ্থ কোৱা বুলি কৈছে। ইয়াৰ उत्तर হ'ব, इस पंक्ति के जरिए कविवर बिहारीलाल यह कहना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति मनचित लगाकर नहीं करता है तो भक्ति बेकार होता है। ठीक है। भगवान को पाने के लिए मनुष्य गहरी भावना से भक्ति करना चाहिए। ठीक है। चंचल मन होकर भक्ति नहीं करना चाहिए। ভগৱানক যদি পাব বিচাৰা তেনেহ'লে মনটো মনচিত লগাই চঞ্চল মনক বশ কৰি ভক্তি কৰিব লাগে একান্ত ভাৱনাত। ঠিক আছে। তেতিয়া ভগৱানক পোৱা যায় বুলি কবিয়ে কৈছে।
ये 5 नंबर, संक्षिप्त में उत्तर दो लगभग 50 शब्दों में। ठीक है। क प्रश्न, कवि के अनुसार अनुरागी चित्त का स्वभाव कैसा होता है? कविर अनुसारत अनुरागी चित्त स्वभावर व्यक्तिर स्वभाव केनेকুৱা থাকে? ঠিক আছে। उत्तर, कवि के अनुसार अनुरागी चित्त का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जो अपने को कृष्ण भक्ति प्रेम में स्थित कर सके। अनुरागी चित्त स्वभाव का व्यक्ति कृष्ण भक्ति प्रेम में हमेशा डूबा रहता है। एनुका मानु अनुरागी चित्तवाला मानु सदाय कृष्ण भक्ति प्रेमत रमी থাকে। ठीक है। उनका भक्ति प्रेम उजाला होता है, माने तेखेतर भक्ति प्रेम उज्जवल থাকে। ठीक है। यार उत्तर है। তাৰপিছত খ নম্বৰ प्रश्न, सज्जन का स्नेह कैसा होता है? सज्जনৰ स्नेह, सज्जনৰ মৰম কেনেকুৱা থাকে? সজ্জনৰ মৰম। यार उत्तर হ'ব, सज्जन का स्नेह गंभीर होता है, सज्जনৰ प्रेम गंभीर থাকে। उनका मन निर्मल पवित्र होता है, तेवर मन निर्मल और पवित्र থাকে। सज्जन लोग किसी का बुरा नहीं करते हैं, सतजन मानुहे केতিয়াও কাৰ বেয়া নকৰে। सज्जन लोग अपने हृदय में सज्जन लोग अपने हृदय में भगवान को बैठा कर रखते हैं। सज्जन लोगे सतजन मानुहे भगवानक निजर हृदय बहाय थय। ठीक है। सज्जन लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखकर कठिनाइयों का सामना करते हैं। सत्पुरुषे কি কৰে? যিমান কঠিন মানে যিমানেই ডাঙৰ পৰিস্থিতি মানে বেয়া পৰিস্থিতি নহওক, সেই বেয়া পৰিস্থিতি বেয়া হ'লেও ধৈৰ্য ধৰি সেই পৰিস্থিতিৰ পৰা হাত সাৰি লয়। ঠিক আছে। মানে সেইটো কাৰণে মানুহে যিমান মানে ডাঙৰ মানে বিপত্তি নাহক, মানুহে ধৈৰ্য ধৰি সেই বিপত্তিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। ঠিক আছে। ধৈৰ্যই परम धन। ठीक है। तो ग नंबर प्रश्न, धन को संचय के संदर्भ में और धन के संचय के संदर्भ में कवि ने कौन सा उपदेश दिया है? माने धन सम्पत्ति सঞ্চয়ৰ বাবে कविए की आदेश दिसे? यार उत्तर होब, धन संचय के संदर्भ में कवि ने कहा है कि दुर्दशाग्रस्त और बुद्धिहीन व्यक्ति धन का संचय करना नहीं जानते हैं। माने दुर्दशाग्रस्त बेमारी मानुह और बुद्धिहीन मानुहे धनर माने संचय करिबोले नाजाने। खाने पीने के लिए जितना धन आवश्यक होता है उतना ही धन व्यय करना चाहिए। खुआ बुआत जिमान धन खरच হয় সিমানেই আমি खरच करिब लागे और जो धन बचता है उसे संचय करना चाहिए। যোনবিলাক খোৱা পোৱাৰ পাছত যোনটো ধন মানে যোনটো সম্পত্তি বাচে সেই সম্পত্তিটো আমি সঞ্চয় কৰিব লাগে, চব খাই পেলাব নালাগে। ঠিক আছে। এইটো কৈছে কবিয়ে। এইটো সঁচা কথা। আমিও মানে কি কৰিব লাগে, যিমান খাবলগীয়া খাব লাগে আৰু যিটো ধন বাচি যায় সেইটো আমি বেংক একাউণ্টত জমা কৰিব লাগে। ঠিক আছে। ঘ प्रश्न, दुर्जन के स्वभाव के बारे में कवि ने क्या कहा है? दुर्जन के स्वभाव के बारे में कविए की কৈছে? ठीक है। यार उत्तर होब, दुर्जन के स्वभाव के बारे में कवि ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति को दुर्जन स्वभावर व्यक्ति माने स्वभाव माने एटू दुर्जन स्वभाव माने होइसे एटू निस्वार्थी व्यक्ति। ठीक है। माने सेल्फिश एनुका मानुह केতিয়াও বিশ্বাস नकरिबा, निजरे कथाटो भावा मानुहक। दुर्जन के स्वभाव वाले व्यक्ति निस्वार्थी होते हैं, वे सिर्फ अपने के लिए सोचता है। ऐसा निस्वार्थी व्यक्ति के संग कभी भी नहीं करना चाहिए। एनुका निस्वार्थी व्यक्तिर লগত কেতিয়াও সংগ কৰিব নালাগে। ঠিক আছে। মনত ৰাখিবা দেই। এতিয়া 19 নম্বৰ प्रश्न, कवि बिहारी किस बेस में अपने आराध्य कृष्ण को मन में बसा लेना चाहते हैं? कविवर बिहारी लाले केनेकुआ रूपत भगवान श्रीकृष्णक तेवर मनत
মানে হেৰি কৰিবলৈ খুজিছে, ঠিক আছে। বচা লেনা চাহতে হে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, कविवर बिहारी लाल अपने आराध्य कृष्ण को इस प्रकार अपने मन में बसा लेना चाहते हैं कि सर पर मुकुट, मयूर मुकुट हो, कमर में काचनी, हाथ में मुरली लिए श्री कृष्ण भगवान के ऐसा छवि हमेशा अपने हृदय में बसा लेना चाहते, ঠিক আছে। শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱানে যেনেকৈ ময়ূৰ মুকুট পিন্ধি থাকে, কমৰত কাচনি আৰু হাতত মুৰলি লৈ যেনেকুৱা ভগৱান থাকে, তেনেকুৱা ৰূপ মানে কবিবৰ বিহাৰীলালে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মনমোহন ৰূপটো নিজৰ হৃদয়ঙ্গম কৰি ল'ম বুলি কৈছে, ঠিক আছে। प्रथम 100 नंबर प्रश्न, आपने उद्धार के प्रसंग में कवि ने गोपीनाथ कृष्ण जी से क्या निवेदन किया है? निजर उद्धार কাৰণে কবিয়ে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক কি নিবেদন কৰিছে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, कवि ने अपने उद्धार के प्रसंग में गोपीनाथ कृष्ण जी से निवेदन किया है कि हे भगवान, पापी से महापापी का उद्धार जैसे किया जाता है, ऐसे ही मुझ अनंत पापी को भी आप उद्धार करो। কবিয়ে কৈছে যে হে ভগৱান, যেনেকুৱা পাপীতকৈ মহাপাপীক যেনেকুৱা আপুনি মানে যেনেকুৱা উদ্ধাৰ কৰা হয়, তেনেকুৱা মোকো उद्धार কৰক। मेरा गुण अवगुण पाप पुण्य सब क्षमा करके उद्धार करो। মোৰ গুণ অৱগুণ চব ক্ষমা কৰি মোক उद्धार কৰা বুলি কৈছে। भगवान के बिना जगत में किसी का भी कल्याण नहीं है, इसीलिए हम सभी को अपना उद्धार के लिए कवि के तरह भगवान से निवेदन करना चाहिए, ঠিক আছে। ভগৱানৰ বাহিৰে এই সংসাৰত কোনো নাই, ঠিক আছে। সেইকাৰণে আমিও ভগৱানৰ ওচৰত নিজৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে প্ৰেম নিবেদনা কৰিব লাগে, ঠিক আছে। এতিয়া द्वितीय মানে छ प्रश्न, कवि बिहारी की लोकप्रियता पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करो। কবি বিহাৰীলালৰ লোকপ্ৰিয়তাৰ সংক্ষিপ্ত পৰিচয় মানে টিপ্পনী এটা ৰচনা লিখা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, कविवर बिहारीलाल का जन्म 1595 ईंग में ग्वालियर वसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। कविवर बिहारीलाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हिंदी के समस्त कवियों में भी इनके अग्रिम पंक्ति का अधिकारी है। उन्होंने प्रमुख रूप से प्रेम श्रृंगार और गौण रूप से भक्ति एवं नीति के दोह की रचना करके अपार लोकप्रियता प्राप्त की है। उनकी यह लोकप्रियता आज भी बनी हुई है। कविवर बिहारीलाल की ख्याति का आधार एकमात्र ग्रंथ सतसई है, जो बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहों का संग्रह है। इसे श्रृंगार, भक्ति और नीति के त्रिवेणी भी कहते हैं। इस ग्रंथ की लोकप्रियता के संदर्भ में यूरोपीय विद्वान डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है कि यूरोप में इसके समकक्ष कोई भी रचना नहीं है। गागर में सागर भरने के समान कविवर बिहारीलाल ने दोहे जैसे छोटे छंद में लंबी चौड़ी बात भी संक्षिप्त में कह दी है। सरस, सुमधुर और पौड़ ब्रजभाषा में रचित ये दोहे काव्य रसिकों पर गहरा प्रभाव छोड़ता है, ঠিক আছে। কবিবৰ বিহাৰীলালৰ জন্ম চন 1595 চনত গোৱালিয়ৰ বচুৱা গোবিন্দপুৰ নামৰ গাঁও এখনত হৈছিলে। কবিবৰ বিহাৰীলাল হিন্দী সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত ৰীতিকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কবি হয়। হিন্দীৰ সমস্ত কবিৰ ভিতৰত অগ্ৰিম পংক্তি অধিকাৰী হয়। কবিবৰ বিহাৰীলালে প্ৰমুখ ৰূপত প্ৰেম শ্ৰৃংগাৰ আৰু গৌণ ৰূপত ভক্তি এৱং নীতিৰ দোহা ৰচনা কৰিছিলে আৰু সকলোৰে লোকপ্ৰিয়তা প্ৰাপ্ত কৰিছিলে। তেওঁৰ লোকপ্ৰিয়তা আজিও আছে। কবিবৰ বিহাৰীলালৰ খ্যাতিৰ আধাৰ গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে সতচই, যাক বিহাৰী সতচই বুলিও কোৱা হয়। এই গ্ৰন্থখনত 700তকৈও অধিক 700 দোহাৰ সংগ্ৰহ আছে।
এই এই গ্ৰন্থত শৃংগাৰ ভক্তি আৰু নীতিৰ ত্ৰিবেণী বুলিও কোৱা হয় এই গ্ৰন্থখনক। ঠিক আছে। এই গ্ৰন্থৰ লোকপ্ৰিয়তা সন্দৰ্ভত ইউৰোপীয় বিদ্বান ডাক্তৰ গ্ৰিয়ৰ্চনে কৈছিলে যে আমাৰ ইউৰোপতো এনেকুৱা সমকক্ষ একো ৰচনা নাই। गागर में सागर भरने के समान কবিবৰ বিহাৰীলাল নে দহাৰ নিচিনা সৰু এটা ছন্দত বহুত ডাঙৰ অৰ্থ সোমাই আছে। ঠিক আছে। सरस सुमधुर और पौड़ ब्रजभाषा में रचित ये दोहे काव्य रसिकों पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। এইটো দোহাটো ব্ৰজ ভাষাত ৰচনা কৰিছে, ব্ৰজাৱলী ভাষা দেই। सिक्स नंबर सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्दों में। क प्रश्न कवि बिहारीलाल का साहित्यिक परिचय दो। কবিবৰ বিহাৰীলালৰ সাহিত্যিক পৰিচয় দিয়া। ঠিক আছে, মই এতিয়া হিন্দীতে কৈ যাম দেই। उत्तर कविवर बिहारीलाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 1595 ईंग में ग्वालियर के निकट वसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम केशव राय था। कविवर बिहारीलाल ने महंत नरहरिदास जी से संस्कृत और प्राकृत की प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ की अध्ययन किया था। तत्कालीन दरबारी भाषा फारसी में भी अधिकार प्राप्त करके वो अपनी एक फारसी रचना के साथ कलाप्रिय मुगल बादशाह शाहजहां से मिले थे। तत्कालीन दरबारी भाषा फारसी में भी अधिकार प्राप्त करके वह अपनी एक फारसी रचना के साथ कलाप्रिय मुगल बादशाह शाहजहां से मिले थे। कविवर बिहारीलाल की काव्य प्रतिभा से सम्राट बड़े ही प्रसन्न हुए। कविवर बिहारीलाल मुगल बादशाह शाहजहां से मिलने के बाद उनका संपर्क मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ अन्य राज्यों में भी हुआ। कई राज्यों से बिहारीलाल को वृत्ति मिलने लगी। कविवर बिहारीलाल की ख्याति का आधार उनका एकमात्र ग्रंथ सच्चय है। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहों का अनुपम संग्रह है। इसे श्रृंगार भक्ति और नीति के त्रिवेणी भी कहते हैं। कविवर बिहारीलाल ने गागर में सागर भरने के समान दोहे जैसे छोटे छंद में लंबी चौड़ी बात संक्षेप में कही है। ঠিক আছে, ভালদৰে লিখিবা দেই তোমালোকে। এইটো হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন। খ প্ৰশ্ন বিহাৰী सच्चय का एक टिप्पणी लिखो। যোনটো सच्चय গ্ৰন্থ সেইটোকে বিহাৰী सच्चय গ্ৰন্থ বুলি কোৱা হয়। সেই গ্ৰন্থৰ এটা টিপ্পনী লিখিবলৈ কৈছে। ঠিক আছে। उत्तर कविवर बिहारीलाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हिंदी के समस्त कवियों में से कविवर बिहारीलाल अग्रिम पंक्ति का अधिकारी है। उन्होंने प्रमुख रूप से प्रेम श्रृंगार और गौण रूप से भक्ति एवं नीति के दोहों की रचना करके अपार लोकप्रियता प्राप्त की है। उनकी यह लोकप्रियता आज भी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। कविवर बिहारीलाल का ख्याति का आधार एकमात्र सच्चय ग्रंथ है, जो बिहारी सच्चय नाम से प्रसिद्ध है। यह बिहारी सच्चय ग्रंथ श्रृंगार भक्ति और नीति त्रिवेणी भी कहते हैं। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहों का अनुपम संग्रह है। इस ग्रंथ के संदर्भ में यूरोपीय विद्वान डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है कि यूरोप में इसके समकक्ष कोई भी रचना नहीं है। गागर में सागर भरने के समान कविवर बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद में लंबी चौड़ी बात भी संक्षेप में कह दी है। सरस सुमधुर और पौड़ ब्रजभाषा में रचित ये दोहे काव्य रसिकों पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
गौ नंबर, कवि बिहारी ने अपनी भक्तिपरक दोहे के माध्यम से क्या कहा है? पठित दोहों के आधार पर लिखो, स्पष्ट करो। उत्तर, कविवर बिहारीलाल के दोहे में भक्तिपरक और नीतिपरक है। उनके भक्ति नीति के दोहे की संख्या कम है, फिर भी भाव, भाषा और अभिव्यक्ति भंगिमा की दृष्टि में अधिक महत्वपूर्ण है। कविवर बिहारीलाल ने इस भक्तिपरक दोहों के माध्यम से मनुष्यों को कृष्ण भक्ति समझाना चाहते हैं। कवि ने अपनी भक्तिपरक दोहों में केवल भक्ति रीति का ही उल्लेख किया है। इनमें वर्णित सभी दोहे की रचना सरस श्रृंगार सुमधुर रूप से की है। इस भक्तिपरक दोहे में कविवर कहते हैं कि कृष्ण भक्ति प्रेम से बड़ा कोई चीज नहीं है। इसका एक सुंदर वर्णन केवल दोहे में ही मिलते हैं। ठीक है। घ नंबर प्रश्न, पठित दोहों के आधार पर बताओ कि कवि बिहारीलाल के नीतिपरक दोहों का प्रतिपाद्य क्या है। यार उत्तर हब, कविवर बिहारीलाल द्वारा रचित नीतिपरक दोहे में भक्ति नीति की दृष्टि से भाव, भाषा और अभिव्यक्ति भंगिमा की महत्व अधिक है। नीतिपरक दोहों में नीति, आदर्श, कृष्ण भक्ति, प्रेम की धारणा एवं सुंदर रूप से वर्णन किया है। पठित दोहे दोहादशक शीर्षक पाठ में सभी दोहे संकलित है। प्रथम 5 दोहे भक्तिपरक और शेष 5 दोहे नीतिपरक है। नीतिपरक दोहे के भाषा ब्रज है। कविवर बिहारीलाल ने दोहे जैसे छोटे छंद में लंबी चौड़ी बात वर्णन किया है। उनके दोहों में प्रेम, श्रृंगार और गौण रूप से भक्ति नीति के दोहे मिलता है। 7 নম্বৰ সম্প্ৰসাৰণ ব্যাখ্যা কৰা। ক प्रश्न, कौ कौरिक संग्रह विपत्ति विदारण हाल। उत्तर, संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी पुस्तक आलोक भगवान के अंतर्गत कविवर बिहारीलाल जी के द्वारा रचित शीर्षक कविता दोहा दशक से लिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्ति में कविवर बिहारीलाल अपना समस्त संपत्ति के रूप में भगवान श्री कृष्ण को ही माना है। क्या व्याख्या, इस पंक्ति के जरिए कविवर बिहारीलाल यह कहना चाहते हैं कि इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों संपत्ति कमाए हैं, पर उसका धन क्या काम जो विपत्ति के समय काम ना आए। इसीलिए कविवर ने अपना सारा संपत्ति भगवान श्री कृष्ण को ही माना है, क्योंकि कवि के हर एक मुश्किलों में भगवान कृष्ण जी साथ निभाते थे और दुख से छुटकारा दिलाते थे। इसीलिए कवि को धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, उनका सारा संपत्ति भगवान श्री कृष्ण जी ही है। ख नंबर, जयमाला छापे तिलक साचे राचे रामो। यार उत्तर हो संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भगवान के अंतर्गत कवि बिहारीलाल के द्वारा रचित शीर्षक कविता दोहा दशक से लिया गया है। प्रसंग, इस दोहे में भगवान की भक्ति किस प्रकार होनी चाहिए उसका वर्णन दिया गया है। ठीक है। यह व्याख्या, इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारीलाल जी यह कहना चाहते हैं कि वह भक्ति किस काम का जो दिखावे के लिए किया जाए। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो दिखावा भक्ति करते हैं, माथे पर तिलक और हाथ में माला लेकर अपने को भगवान का बड़ा भक्त बताकर दिखावा करते हैं। कवि ने इस प्रकार के भक्ति को बेकार माना है। निर्मल मन से निस्वार्थ भावना से ईश्वर की भक्ति की जाती है। जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, भगवान उसका हमेशा साथ देता है। इसीलिए हमें हमारे चंचल मन को स्थिर करके सच्चे हृदय और प्रेम भावना से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। ठीक है। गौ नंबर प्रश्न,
कनक कनक तो सौगुनी इन्हीं पाए बोराए। यार उत्तर हब संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक आलोक भगवान के अंतर्गत कवि बिहारी लाल के द्वारा रचे गए शीर्षक कविता दोहा दशक से लिया गया है। प्रसंग। इस पंक्ति के जरिए कविवर बिहारी लाल यह बताना चाहते हैं कि लोग संपत्तिवान होने पर घमंडी और अहंकारी हो जाता है। व्याख्या। इस दोहे में कविवर कनक शब्द का दो अर्थ बताया है। एक कनक धतूरा और एक कनक सोना बताया है। इन दोनों का उदाहरण देकर कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि जिस तरह धतूरा खाने से मनुष्य उन्माद या मादकता से पागल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सोने को पाने से भी मनुष्य पागल हो जाता है। इस बात से कवि बिहारी लाल यह कहना चाहते हैं कि सोने में धतूरे से 100 गुनी ज़्यादा नशा होते हैं, क्योंकि धन संपत्ति पाते ही मनुष्य घमंडी और निस्वार्थी बन जाता है। हमेशा अपने धन संपत्ति में ही उन्माद रहते हैं। इसीलिए कविवर बिहारी लाल ने कहा है कि सोने में धतूरे से 100 गुनी ज़्यादा नशा होते हैं। घ नंबर। औछे बड़े ना होए सके फारी निहारे नैन। यार उत्तर हब संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भगवान के अंतर्गत कविवर बिहारी लाल के द्वारा रचे गए शीर्षक कविता दोहा दशक पाठ से लिया गया है। प्रसंग। इस पंक्ति में कविवर बिहारी लाल ने नीचे स्वभाव वाले व्यक्ति का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि ने इस पंक्ति में कहा है कि छोटे लोग कभी बड़े नहीं हो सकते, अर्थात नीचे स्वभाव वाले व्यक्ति कभी बड़े नहीं बन सकते। जिस प्रकार हम लाख कोशिश करने पर भी आसमान की सीमा का विस्तार नहीं कर सकते, अपनी आँखों को जितना बड़ा कर देखें फिर भी हम हमारी आँखों का आकार बढ़ा नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार नीचे स्वभाव वाले व्यक्ति लाख कोशिश करने पर भी अब महान नहीं बन सकते। ठीक है यार व्याख्याবিলাক শেষ হ'ল। ইয়াৰ এই দহা দশক পাঠটোৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ শেষ হৈছে। এতিয়া ব্যাকৰণ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ আছে। মই তোমালোকক ব্যাকৰণ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ কৰাই দিম এতিয়া দেই, তোমালোকে কৰি ল'বা। भाषा एवं व्याकरण। क प्रश्न संधि विच्छेद करो। उत्तर देहावसान, देहजुग अवसान। लोकोक्ति, लोकजुग उक्ति। उज्ज्वल, उत्जुग ज्वल। सज्जन, सतजुग जन। दुर्जन, दुजुग जन। नेक्स्ट ख नंबर। विलोम शब्द लिखो माने विपरीत शब्द। उत्तर अनुराग विराग, पाप पुण्य, गुण दोष, प्रेम घृणा, सज्जन दुर्जन, मित्र शत्रु, गगन धरती, श्रेष्ठ निकृष्ट। ঠিক আছে। চ' এই দহা দশক পাঠটোৰ মই সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰাই দিলোঁ, ব্যাকৰণৰো কৰাই দিলোঁ। চ' ঠিক আছে, আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ সহায় হয়। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।